گرمی کی شدت میں مسلسل اضافے کے باعث شہریوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ شارع فیصل کے دونوں ٹریک پر پانی کے کیمپ نہ ہونے پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ شہری کہتے ہیں کہ راہگیروں اور مسافروں کے لیے پانی کے کیمپ لگانا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ وقت پر پانی پی سکیں۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ کراچی میں بڑھتی گرمی کے باوجود شہریوں کے لیے بنیادی سہولیات کا فقدان۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں ٹھنڈے پانی کے کیمپس قائم نہیں کیے جا سکے، جبکہ شارع فیصل جیسے اہم مقام پر بھی کوئی انتظام نظر نہیں آیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں پانی جیسی بنیادی سہولت نہ ملنا تشویشناک ہے اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ یہ پورا شارع فیصل پہ جو پانی کا کیمپ ہے کہیں بھی نہیں ہے، دونوں سائڈوں پہ نہیں ہے، اور اس کو شدید ضرورت ہے۔ عواموں کو جو ہے نا بہت زیادہ گرمی ہے، بہت جو ہے نا گرمی کا حد نہیں ہے، تو اس پہ لہٰذا ہمارا گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ کیمپ جگہ جگہ جو ہے نا لگا دے، کم سے کم 4-5 کیمپ پہ لگانا چاہیے۔ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے شارع فیصل پہ پانی کا کہیں کیمپ نہیں لگا ہوا ہے۔ کوئی بوڑھے وغیرہ بڑے جاتے ہیں، بڑے مشکل ہوتی ہے کہ کم سے کم کیمپ لگا دیں۔ ماہرین کے مطابق شہریوں کو چاہیے کہ اپنی مدد آپ کے تحت درخت لگائیں، جبکہ سرکاری سطح پر شجرکاری مہم کو فروغ دیا جائے تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ کورنگی نمبر 3 میں شدید گرمی کے ساتھ بجلی اور پانی کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا۔ طویل لوڈ شیڈنگ اور پانی کی عدم فراہمی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ 24 روز سے صاف پانی دستیاب نہیں، جبکہ گھنٹوں بجلی کی بندش معمول بن چکی ہے۔ رابیل صدیق کی رپورٹ۔ کراچی کی جھلسا دینے والی گرمی اور اس پر طویل لوڈ شیڈنگ، کورنگی نمبر 3 کے مکین دوہری اذیت کا شکار۔ شدید گرمی میں 6 گھنٹے کی بجلی کی بندش کے باعث گھر بھٹیاں بن گئے، اور صرف بجلی ہی نہیں بلکہ پانی بھی نایاب ہے۔ علاقہ مکینوں کو 24 دن سے پینے کا پانی میسر نہیں۔ رہائشی کہتے ہیں بچے گرمی میں بے حال ہیں اور رات کو آرام نصیب نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھاری بھرکم بل ادا کرنے پڑتے ہیں۔ بل پورا لیں گے، یہ ایک مہینہ بل نہیں بھرو بجلی کاٹنے آ جائیں گے۔ ہم یہ ہوتی پریشانی بجلی کی اور پانی کی تو تقریباً 2-2.5 سال ہوا ہے، ابھی یہ 24-25 دن ہوگا، بالکل پانی بالکل بھی نہیں آ رہا، بند کرا ہوا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی نہ ہونے پر ٹینکر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایک ٹینکر 12 سے 14 ہزار روپے تک کا پڑتا ہے، جو ایک عام شہری کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ خریدنے ٹنکیاں 1300 روپے کی ٹرک آ رہا ہے، کوئی 14,000 کا آ رہا ہے، کوئی اسکوٹر ٹرک جو آ رہا ہے وہ تقریباً 1300-1400 کا چل رہا ہے۔ یہ ہے پانی کا حال۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر بجلی اور پانی کے مسائل حل کیے جائیں تاکہ انہیں اس کرب سے نجات مل سکے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں وقفہ سوالات کے علاوہ پورا بزنس پوائنٹ آف آرڈرز پر چلایا گیا۔ سینئر وزیر شجر نامہ نے کہا کہ سندھ حکومت نے ماہی گیروں کے لیے فیول سبسڈی شروع کر دی۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے کہا کہ گل پلازہ کورٹ پراپرٹی ہے، اس لیے ملبہ نہیں اٹھا سکتے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید کی زیر صدارت سندھ اسمبلی اجلاس، ایم کیو ایم کے مہیش کمار ہاسیجہ کا نصاب میں ہندو طلبہ کے لیے کتابیں شامل کرنے پر وزیر تعلیم سے اظہار تشکر، جبکہ سردار شاہ نے کہا کہ کرسچن طلبہ کے پنجاب میں نصاب شامل ہے جس کو سندھ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام نجی اسکول وہ نصاب پڑھانے کے پابند ہوں گے۔ ایوان میں سینئر وزیر شرجیل میمن نے موٹر سائیکل سواروں کے بعد ماہی گیروں کو بھی فیول سبسڈی دینے کی خوشخبری دی۔ 2,000 روپے پر ماہ ایز اے سبسڈی، فیول سبسڈی حکومت سندھ دے رہی ہے، جس میں ابھی تک لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ سبسڈی اویل کی ہے۔ تو یہ حکومت سندھ نے یہ انیشیٹو لیا، تو حکومت سندھ نے آج یہ فیصلہ کیا کابینہ نے کہ مختلف بوٹ کی سائزز کے حساب سے ان کو جو ہے وہ لاکھ روپے پر بوٹ جو ہے حکومت سندھ ہمارے ماہی گیروں کو دے رہی ہے تاکہ ایٹ لیسٹ وہ ان کا جو کاروبار جو متاثر نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں اور نہیں ہو رہا، یہ حکومت سندھ نے یہ انیشیٹو لیا ہے آج سندھ کیبنٹ نے۔ محکمہ سیاحت اور ثقافت کے بارے میں سوالات پر وزیر ثقافت ذوالفقار شاہ نے بتایا کہ سندھ کے تمام آثار قدیمہ پر میوزیم موجود ہیں اور تمام بڑی لائبریریز ڈیجیٹلائز ہیں۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ نیشنل میوزیم کا کنٹرول صوبائی حکومت کے حوالے کیا جائے۔ ایم کیو ایم کے دلاور خان کے پوائنٹ آف آرڈر کے جواب میں وزیر داخلہ ضیاء النجار نے بتایا کہ ایف آئی آر کے بعد گل پلازہ کورٹ پراپرٹی بن چکا، عدالت کی اجازت کے بغیر ملبہ نہیں اٹھا سکتے۔ سندھ اسمبلی کے ایجنڈے میں کئی قراردادیں شامل تھیں لیکن بحث نہ ہو سکی۔ ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید نے اجلاس جمعے کے روز سحپیر تک ملتوی کر دیا۔ کیمرامین عبد المنان کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی فروخت میں ماہانہ 6% اور سالانہ 7% کمی ہو گئی۔
अप्रैल 26 में पेट्रोल 21% महंगा होकर 375 रुपये फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 26% महंगा होकर 410 रुपये फी लीटर हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बड़े इजाफे के बाइस मुल्क भर में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की फरोख्त मुतासर होने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की फरोख्त माहाना बुनियाद पर 6% जबकि सालाना बुनियाद पर 7% कम हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में पेट्रोल की कीमत में 21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद फी लीटर कीमत 311 रुपए से बढ़कर 375 रुपए तक पहुँच गई। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 26% इजाफा हुआ और ये 325 रुपए से बढ़कर 410 रुपए फी लीटर हो गई। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस तेल की सप्लाई मुतासिर हुई, जिससे आलमी मार्केट में कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया, जिसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़े। अप्रैल 2026 के दौरान मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई फरोख्त सालाना बुनियाद पर 7% कमी के बाद फरोख्त 13 लाख टन रही, जबकि गुज़िश्ता साल अप्रैल में ये 14,60,000 टन थी। रवा माली साल के पहले 10 माह में मजमूई ईंधन की फरोख्त 1,37,60,000 टन रही। पेट्रोलियम लेवी के हवाले से हुकूमत ने रवा माली साल के लिए 1470 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया है, जिसमें से 10 माह के दौरान 1210 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं, यानी हदफ का 82% हासिल कर लिया गया है। अशरफ खान, सिटी 21। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ पुलिस मुकामात पर नाके लगाकर चेकिंग जारी है। बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। में ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन तेज, जाली नंबर प्लेट्स पर शिकंजा सख्त। शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बगैर नंबर प्लेट्स या फैंसी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से नाके लगाकर चेकिंग का सिलसिला तेज है। नाकों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ CPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिले पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं। नाके कोरंगी रोड, गुलिस्तान जौहर, नाज़माबाद और दीगर मुकामात पर लगाए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है और मौके पर जुर्माने भी हो रहे हैं। शहरी अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। खासतौर पे जिस गाड़ी की नंबर प्लेट आगे नहीं है या पीछे नहीं है, या जिसने छुपाई हुई है गाड़ी, जैसे कोई चीज़ लगाई है, कपड़ा लगा लिया, कोई चीज़ ऐसी लगाई जिससे नंबर वाज़ेह नहीं हो रहा, थाने वाले हमारे साथ हैं, थाने वालों को हवाले करते हैं 550 का। पुलिस हुकाम ने शहरियों से अपील की कि अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स आविजा करें और कागजात साथ रखें ताकि चालान और जुर्मानों से महफूज रह सकें। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मैं राज अख्तर, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध असम्बली में वक्फे सवालात के अलावा पूरा बिजनेस पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पर चलाया गया। सीनियर वजीर शजीर नामे ने कहा कि सिंध हुकूमत ने माहीगीरों के लिए फ्यूल सब्सिडी शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने कहा कि गुल प्लाजा कोर्ट प्रॉपर्टी है, इसलिए मलबा नहीं उठा सकते। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की जेर सदारत सिंध असम्बली इजलास। MQM के महेश कुमार हासिजा का निसाब में हिंदू तलबा के लिए किताबें शामिल करने पर वजीर तालीम से इजहार तशक्कुर, जबकि सरदार शाह ने कहा कि क्रिश्चियन तलबा के पंजाब में निसाब शामिल है जिसको सिंध में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तमाम निजी स्कूल व निसाब पढ़ाने के पाबंद होंगे। ऐवान में सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मोटरसाइकिल सवारों के बाद माहीगीरों को भी फ्यूल सब्सिडी देने की खुशखबरी दी। 2,000 रुपए पर माह एज ए सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी हुकूमत सिंध दे रही है, जिसमें अभी तक लाखों लोगों ने जो है वो सब्सिडी अवेल की है। तो ये हुकूमत सिंध ने एक इनिशिएटिव लिया। तो हुकूमत सिंध ने आज ये फैसला किया काबीना ने कि मुख्तलिफ बोट की साइजेस के हिसाब से उनको जो है वो लाख रुपए पर बोट जो है हुकूमत सिंध हमारे माहीगिरों को दे रही है, ताकि एटलीस्ट वो उनका जो कारोबार जो मुतासर ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं और नहीं हो रहा, ये हुकूमत सिंध ने ये इनिशिएटिव लिया है आज सिंध कैबिनेट ने। महकमा सियाहत और सकाफत के बारे में सवालात पर वजीर सकाफत जुल्फिकार शाह ने बताया कि सिंध के तमाम आसार कदीमा पर म्यूजियम मौजूद हैं और तमाम बड़ी लाइब्रेरीज डिजिटलाइज हैं। उन्होंने विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि नेशनल म्यूजियम का कंट्रोल सूबाई हुकूमत के हवाले किया जाए। MQM के दिलावर खान के पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जवाब में वजीर दाखिला ज़ियाउल नज्जार ने बताया कि FIR के बाद गुल प्लाजा कोर्ट प्रॉपर्टी बन चुका, अदालत की इजाजत के बगैर मलबा नहीं उठा सकते। सिंध असम्बली के एजेंडे में कई करारदादें शामिल थीं, लेकिन बहस न हो सकी। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद ने इजलास जुम्मे के रोज सहपैर तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ आजिज जमाली, कराची। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की फरोख्त में माहाना 6% और सालाना 7% कमी हो गई।
अप्रैल 26 में पेट्रोल 21% महंगा होकर 375 रुपये फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 26% महंगा होकर 410 रुपये फी लीटर हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बड़े इजाफे के बाइस मुल्क भर में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की फरोख्त मुतासर होने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की फरोख्त माहाना बुनियाद पर 6% जबकि सालाना बुनियाद पर 7% कम हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में पेट्रोल की कीमत में 21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद फी लीटर कीमत 311 रुपए से बढ़कर 375 रुपए तक पहुँच गई। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 26% इजाफा हुआ और ये 325 रुपए से बढ़कर 410 रुपए फी लीटर हो गई। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस तेल की सप्लाई मुतासिर हुई, जिससे आलमी मार्केट में कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया, जिसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़े। अप्रैल 2026 के दौरान मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई फरोख्त सालाना बुनियाद पर 7% कमी के बाद फरोख्त 13 लाख टन रही, जबकि गुज़िश्ता साल अप्रैल में ये 14,60,000 टन थी। रवा माली साल के पहले 10 माह में मजमूई ईंधन की फरोख्त 1,37,60,000 टन रही। पेट्रोलियम लेवी के हवाले से हुकूमत ने रवा माली साल के लिए 1470 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया है, जिसमें से 10 माह के दौरान 1210 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं, यानी हदफ का 82% हासिल कर लिया गया है। अशरफ खान, सिटी 21। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ पुलिस मुकामात पर नाके लगाकर चेकिंग जारी है। बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। में ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन तेज, जाली नंबर प्लेट्स पर शिकंजा सख्त। शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर जाली और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बगैर नंबर प्लेट्स या फैंसी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से नाके लगाकर चेकिंग का सिलसिला तेज है। नाकों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ TPLC, ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिले पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं। नाके कोरंगी रोड, गुलिस्तान जौहर, नाज़माबाद और दीगर मुकामात पर लगाए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है और मौके पर जुर्माने भी हो रहे हैं। शहरी अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। खासतौर पे जिस गाड़ी की नंबर प्लेट आगे नहीं है या पीछे नहीं है, या जिसने छुपाई हुई है गाड़ी, जैसे कोई चीज़ लगाई है, कपड़ा लगा लिया, कोई चीज़ ऐसी लगाई जिससे नंबर वाज़ेह नहीं हो रहा, थाने वाले हमारे साथ हैं, थाने वालों को हवाले करते हैं 550 का। पुलिस हुकाम ने शहरियों से अपील की कि अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स आवेजा करें और कागजात साथ रखें ताकि चालान और जुर्मानों से महफूज रह सकें। कैमरामैन आगा रफीक के साथ मैं राज अख्तर, सिटी 21।